3 important lessons from the book by Chris Gully Boy. Gully B. Anyways, from the book $100 Startup. I think you know about this book. This book is all about how to turn your passion into a business and how to grow your own micro business in less than $100 of investment. One thing let me know कि आपको नहीं लगता है कि आजकल इन सारी चीज़ों की कुछ ज़्यादा हाइप चल रहे हैं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स, क्विट जॉब्स, क्विट MBAs, क्विट 9 to 5, फॉलो योर पैशन, ग्रो योर ओन बिजनेस, बी योर ओन बॉस. लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो और व्हाट आर यू चूजिंग फ्रॉम देम. एक्चुअली ना हम कभी कभी ट्रेंड और कूल बनने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि व्हाट वी एक्जैक्टली वांट. वी फोकस ऑन व्हाट सीम्ड इंटरेस्टिंग एंड व्हाट सीम्स कूल टू अस इंस्टीड ऑफ व्हाट एक्चुअली सूट्स टू अस. हाँ, ये बात अलग है कि आप सीख के कुछ भी कर सकते हो, आप सीख के कुछ भी बन सकते हो, बट यू हैव टू नो योर इनर टैलेंट ऑल्सो. सो लीव अ कमेंट कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो. सो हम कहाँ थे? लेसन्स फ्रॉम $100 स्टार्टअप. First of all, let me tell you also कि it is not an financial advice and I think it is not an advice anymore. It is a piece of content, so be choosy and grab what suits to you exactly. Okay, so if you are watching me for the first time, this side Abu Talha. I talk about personal development, life strategies, hacks, business and finances, freelancing and many more that just come to my mind. So basically Chris talked here that how to break free from the shackles of 9 to 5 by combining your passion and skill into your own micro business, which you can start for $100 or less, yet still turn to a full-time income thanks to the power of internet nowadays. In this book, basically he has shown the work of more than 1500 people who have built their own micro business and took them to the high. And also it has 50 very interesting case studies. And based on these cases, he has given a step-by-step framework to start your own business, to turn your passion into a full-time income. And now, here are the 3 crucial lessons from the book to get you started. Number 1 is, passion is only the 1/3 of the equation. You also need skills and customers. And now the second one is, if you want your business to be more than just a hobby, then focus on income and costs. And the third one is, keep your plan simple because action beats them every time. So now let me elaborate them one by one. So starting from the one that is, passion is only your 1/3 of the equation. You also need skills and customers. We now face a generation of most of peoples who try to turn their passion into a paycheck. While he says that without preparedness, you should not just quit your job and start your own business or start following your passion. He argues for more practical approach. Keep your day job at first and start your business on the side. He says passion is only the part of the equation, 1/3 to be exact. The other 2 are skills and customers. You have to find the sweet spot where your passion meets the skills you are good at and the needs of other people, which you can fulfill with those skills. After all, people have to pay you for this to work. As for example, eating a pizza might be a passion for you, but no one is going to pay for that. However, making pizza does. Plenty of people are those who do not know how to make a tasty pizza, so they can pay you for the one. सो आपका पैशन जो है वो एक स्किल से कंबाइंड होना चाहिए और आपका पैशन और स्किल मिलकर के ऐसा होना चाहिए कि वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन रहा हो, तभी जा करके आप अपने पैशन से जो है ना वो आप कुछ पैसे कमा सकते हो. सो बी फ्लेक्सिबल टू स्टे ओपन फॉर अ स्किल ट्रांसफॉर्मेशन. आपको एडजेसेंट स्किल्स जो है, आपके स्किल और उससे एडजेसेंट स्किल्स को आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा और आपको अपने पैशन को देखना होगा कि इस पैशन में आप कौन से स्किल्स को और जोड़ सकते हो जिससे कि आपका काम और आसान हो जाए. नाउ लेसन 2, फोकस ऑन लो कॉस्ट एंड बीइंग प्रॉफिटेबल टू टर्न योर हॉबी इनटू अ बिजनेस. क्योंकि जब तक लोग आपको पे नहीं करते हैं ना, तो आपका पैशन बिजनेस इज जस्ट अ हॉबी. देयरफॉर यू मस्ट लुक एट फंडिंग, कोस्ट एंड इनकम. लकीली फंडिंग इज easier than ever before and most businesses can be run or at least validated on a single website only, thus costing less than $100 to get set up. And if you need funding for a physical product, for example, then you can build an audience and then launch a Kickstarter campaign to help you get together the money you need. The more potential customers you reach out to, the more affiliate programs you get on the board. And the more traffic you build, the more you will be able to sell. So be proactive on developing your business and focus on low cost but time intense methods like personal outreach, going to audience, Google ads, etc. Running your passion business should be fun, but it is still a business. And if you do not treat it that way, the only place you will run is into the ground. And at last, third one, action beats planning. So keep your plan as simple as possible. होता क्या है कि हम जब कोई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ही बहुत सारे प्लान बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए हम जो है अपने प्लान जो है वो एक बार में बना लेते हैं.
तो उससे क्या होता है कि वो पूरा प्लान हमें बहुत लंबा लगता है और फिर हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। आपको करना क्या है कि अब आप अपने पूरे प्लान को छोटे छोटे स्टेप्स में बांट दो और अपने प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में करके उसे फॉलो करो। सो फोर्स योर सेल्फ टू पुट योर बिजनेस प्लान इन अ सिंगल पेज ऑफ पेपर। कहा जाता है कि अगर आप अपने प्लान को 5 मिनट में समझा नहीं पा रहे हो तो आपका प्लान उतना अच्छा नहीं है। तो एक बार में पूरे प्लान को बनाने के पीछे मत पड़ो, आप छोटे छोटे प्लान को बनाओ और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप को जो है वो अपने फ्यूचर सेल्फ पे छोड़ दो कि जब आगे बढ़ोगे तब आप और आपकी पूरी एक टीम मिल करके उस प्लान को फॉलो करेगी और उस प्लान को बनाएगी और तब वो एग्जीक्यूट होगा। और आपका मिशन स्टेटमेंट कि आपको करना क्या है वो एक ट्वीट के बराबर होना चाहिए, यानी कि इन 140 कैरेक्टर्स। अगर इतने में आपका मिशन स्टेटमेंट आ जाता है कि आपको क्या करना है और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तब आपको और आपके टीममेट्स को और फिर जब आप जहाँ से फंड रेज करोगे उन्हें समझाने में और समझने में बहुत आसानी होगी। तो अगर हम इस सारे बुक को 3 सेंटेंस में अगर हम कंक्लूड करें तो 3 इंपॉर्टेंट लाइंस यही हैं कि आपका पैशन जो है वो पूरे बिजनेस का पार्ट नहीं है, सिर्फ 1/3 उसका पार्ट है और उसके अलावा आपको स्किल्स और कस्टमर्स की ज़रूरत है। और दूसरा कि अगर आपको अपने पैशन को हॉबी से ज़्यादा बढ़कर कुछ बनाना है देन फोकस ऑन इनकम एंड कॉस्ट। एंड द थर्ड वन इज़ कि आप अपने प्लान को जितना हो सके सिंपल रखने की कोशिश करो, क्योंकि एक्शन बीट्स प्लानिंग। जब आप एक्शन ज़्यादा करते हो, आपके पास प्लानिंग कम है, तब आप ज़्यादा दूर भाग सकते हो। और अगर आपके पास प्लानिंग बहुत लंबी है और आप उसमें एक्शन नहीं ले पा रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एंड लास्टली, जब भी आप कोई चीज़ की शुरुआत करोगे ना तब सारे लोग अचानक से एक्सपर्ट बन जाएंगे और आपको अनसोलिक्टेड एडवाइसेस देना शुरू कर देंगे। और ख़ास करके उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आज तक जो फील्ड में आप काम कर रहे हो उसको उन्होंने जाना भी नहीं होगा, वो फिर भी आपको एडवाइस देने पे आ जाएंगे। सो डोंट लिसन टू देम, आप जो है अपना काम करते रहो। दैट्स इट। सो इफ़ यू फाउंड दिस समरी एंड लेसन्स हेल्पफुल देन शेयर विद दोस्त who needs to hear this। और उसके बाद अगर आपने कुछ ठान लिया है, आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो उसे एक्सिक्यूट करो। उसे पहले पेपर पे लाओ, फिर उसके बाद फिर उसे कुछ अच्छे लोगों के साथ शेयर करो और उसे एक्सिक्यूट करना स्टार्ट करो। टेक केयर।